السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں حسن رضا آپ کے کلاس سلیبس کو لے کر بنایا تھا۔ اگر آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجیے، اس لیے کہ کسی بھی ایگزام کو پاس کرنے کے لیے سب سے جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سلیبس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سلیبس سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس ایگزام کو اچھے طرح سے پاس کر جائیں گے۔ لیکن آپ جب سلیبس ہی نہ سمجھیں گے کیا پوچھا جائے گا تو پھر ایگزام کو پاس کرنا یہ بہت کٹھن ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے اس سلیبس کو والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کے آپ دیکھ لیں۔ اس سے پہلے میں نے جو آج کا دوسرا کلاس ہے، اس سے پہلے میں نے کوشچن کے اعتبار سے پہلا کلاس کرا دیا ہے۔ اگر اس کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ دیکھ لیں۔ میں جو سلیبس بتایا ہوں اسی کے اعتبار سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ سلیبس کے اعتبار سے دیکھیں گے ویڈیو تو بالکل ہو اسی طرح سے بنایا گیا ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے یہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی عقیدہ کے امام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے حسن مصباحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اس لیے کہ اگر آپ کے ایگزام تک آپ کے ساتھ دینے کے لیے میں کھڑے ہوں، اس لیے آپ اچھی طرح تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے، انشاءاللہ اس سے بہت مدد ملے گی، اس لیے کوشچن بہت اس میں اچھے لیول کے لیے گئے ہیں۔ تو چلیے بغیر تاخیر کرتے ہوئے اپنے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں، پہلا جو سوال ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ دیکھیں۔ پہلا جو سوال ہے، پہلے یہ آپ ٹھان لیجئے کہ مجھے ہر ایک کا جواب دینا اچھی طرح سے دینا ہے، تو آپ لوگ ایک دم دھیان یہاں پر کیندرت کر لیجئے تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ لگے تو نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے یہ پہلا جو عقیدے کے امام پر آدھارت یہ سوال ہوں گے، ٹھیک ہے، MCQ کے اعتبار سے۔ چلیے دیکھیں، پہلا سوال ہے عقیدے اسلامی وشواس کے دو پرمکھ ایمان کون ہیں؟ تو یہاں پر جو سمپلی جو بات بول رہا ہے کہ جو عقیدے کے جو امام ہیں، کتنے امام ہیں، عقیدے کے کتنے امام ہیں وہ پوچھ جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر ایک اور سوال پوچھ جاتا سے ایک ہے، چار ہے، پانچ ہے، تین ہے، دو ہے، تو یہاں پہ ایسے بھی سوال آپ کو پوچھ سکتا ہے نا کہ عقیدہ کے امام کتنے ہیں، حالانکہ یہاں پر سوال الگ ہے۔ عقیدہ اسلامی وشواس کے دو پرمکھ امام کون ہیں؟ تو دو پرمکھ بولا ہے، کیا ہے؟ پرمکھ۔ تو کون کون ہیں آپ بتائیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی۔ آپشن بی میں امام بخاری اور امام مسلم۔ آپشن سی میں امام اشعری اور امام ماتوریدی۔ آپشن ڈی میں امام مالک اور امام شافعی۔ جواب دیں گے تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا امام اشعری اور امام ماتوریدی۔ کیا ہوگا؟ امام اشعری اور امام ماتوریدی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال پر چلتے ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری کا سمبند کس دیش سے تھا؟ یعنی یہاں پہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو امام ابو الحسن الاشعری کا سمبند یعنی کس دیش سے وہ رہتے تھے؟ مصر سے رہتے تھے؟ کس دیش سے رہتے تھے؟ مصر سے رہتے تھے، عراق سے رہتے تھے، یا حجاز سے رہتے تھے، یا بھارت سے رہتے تھے؟ اس کا بتائیں گے۔ کوشچن نمبر 2 کا امام ابو الحسن الاشعری کا سمبند کس دیش سے تھا؟ تو ان کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے عراق سے، ٹھیک۔ آگے چلیے تیسرا سوال۔ امام ابو المنصور الماتوریدی کا جنم کہاں ہوا؟ یعنی جنم یعنی اس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بغداد میں ہوئی، دمشق میں ہوئی، سمرقند میں ہوئی، مکہ میں ہوئی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ لوگ بتائیں۔ امام ابو منصور الماتوریدی کا جنم کہاں ہوا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آپشن نمبر
सी सही हो जाएगा, यानी समरकंद में। ठीक है, समरकंद में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलिए, अकीदे में अशरी और मातुरीदी स्कूल किस फिरके से जुड़े हुए हैं? यानी बोल रहे हैं कि जो अकीदे के एतबार से जो ये दोनों इमाम हैं, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? शिया से है, खारजिया से है, अहले सुन्नत वल जमात से है, सूफी से है। तो अकीदे में अशरी और मातुरीदी स्कूल किस फिरके से जुड़े हुए हैं, इसका बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए शिया, ऑप्शन नंबर बी खारजिया, खवारिज लिखा यानी खारजिया, और तीसरा है अहले सुन्नत वल जमात का, और तीसरा और डी है सूफी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, इमाम अशअरी शुरू में किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? यानी बता रहे हैं कि जो इमाम अशअरी है पहले किस विचारधारा में जुड़े हुए थे, यानी पहले किसको मानते थे, यानी पहले किस मज़हब को मानते थे? शिया को मानते थे, खारजिया को मानते थे, मुतज़िला को मानते थे, मातुरीदी को मानते थे। तो आपको बता दें, इमाम अशअरी पहले जो थे वो मुतज़िलिया जो थे उसके मानने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को मानना शुरू कर दिया था। तो इस एतबार से आपका जो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुतज़िला। ठीक है, आगे चलिए, अकीदे के किस इमाम ने तर्क और दलील से अहले सुन्नत की वकालत की? यानी बोले अकीदा के जो इमाम हैं, किस इमाम ने, उस इमाम का नाम पूछ रहे हैं। अकीदे के किस इमाम ने, यानी यहाँ पर डायरेक्ट नाम पूछा जा रहा है, किस इमाम ने तर्क और दलील से अहले सुन्नत की वकालत की? इमाम बुखारी ने, इमाम शाफ़ई ने, इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी ने, इमाम इब्ने कसीर ने। छठा का जवाब देंगे तो इसका जो जवाब होगा इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी, इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सातवां है, आज के ज़्यादातर अहले सुन्नत वल जमात किस मत को मानते हैं? आज के ज़्यादातर अहले सुन्नत वल जमात किस मत को मानते हैं? शिया को, खारजिया को, अशअरी या मातुरीदी को, नास्तिक को? 7 का जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अशअरी या मातुरीदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इमाम अशअरी और इमाम मातुरीदी का काम किस चीज़ की हिफाजत करना था? या दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है सवाल एक ही है, लेकिन घुमा घुमा कर सवाल ऐसे ही पूछ देते हैं, इसलिए आपको एक टॉपिक को पूरा कवर किया जा रहा है ताकि आपको हर एतबार से सवाल करना हल हो जाए। इसका जवाब बताएंगे, इमाम अशअरी और इमाम मातुरीदी का काम किस चीज़ की हिफाजत करना था? फ़िक़्ह की, कुरान की तिलावत, अक़ीदे की सही समझ, जिहाद। तो इसका जो जवाब होगा अक़ीदे की समझ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों काम क्या था? लोगों को अक़ीदे की समझ पैदा करना उसके ज़हन में। आगे चलिए, अक़ीदे के क्षेत्र में इमाम अशअरी ने किस बात का खंड किया? ऑप्शन नंबर ए सुन्नत का, ऑप्शन नंबर बी कुरान का, ऑप्शन नंबर सी मुतज़िले के गलत विचारों का, और ऑप्शन नंबर डी हदीस का। इसका जवाब बताएंगे 9 का। तो पहले बता दें कि पहले तो मुतज़िली का मानने वाले थे, लेकिन बाद में जब इनको समझ आए तो क्या हुआ कि इसके मुतज़िली जो हैं उससे गलत विचारों का क्या किए, खंड किया। तो ऑप्शन नंबर इस एतबार से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 2 सवाल बन गया। ये बनेगा कि इमाम अशअरी पहले किस मत को मानते थे? तो मुतज़िलिया को। ठीक है, अगर ये बोलेंगे कि किस इमाम अशअरी ने किस बात का अक़ीदे के किस क्षेत्र में इमाम अशअरी ने किस बात का खंड किया, तो मुतज़िली के गलत विचारों का खंड किया था। ठीक है, अब आगे चलें। अशअरी और मातुरीदी मतों में क्या समानता है, यानी दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, जो पूछ रहे हैं 10 में। अशअरी और मातुरीदी मतों में क्या समानता है? दोनों कुरान को नहीं मानते, दोनों तर्क और दलीलों से अक़ीदों को समझाते हैं, दोनों नए फ़िरके के हैं, दोनों अहले हदीस से जुड़े हुए हैं। अशअरी और मातुरीदी मतों में क्या समानता है? तो इसका जवाब जो देंगे
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दोनों तर्क और दलील से अकीदे से समझाते हैं। यानी दोनों जो इमाम हैं ये दोनों जो दलीलों से अकीदों को लोगों को समझाते हैं कि ये सही है, ये सही है, और उसका दलील बताते हैं ताकि लोग माने। अब देखिए आगे, अकीदा शब्द का अर्थ क्या है? अकीदा शब्द का अर्थ क्या है? अकीदा शब्द का अर्थ क्या है? अभी यहाँ जो सवाल होगा वो होगा अकीदे इमाम के मौलिक सिद्धांत पर जो आधारित था। ठीक, अकीदा शब्द का अर्थ क्या है? व्यवहार, परंपरा, पक्का यकीन, इतिहास। तो अकीदा किसे कहते हैं? कि इंसान बोलता है ना कि मेरा ये अकीदा है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, तो पक्का यकीन है कि अल्लाह एक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक। ठीक, अब आगे चलिए, इस्लामी अकीदे का केंद्र कौन है? यानी बोल रहे हैं कि इसका इस्लामी अकीदा केंद्र कौन है? पैगंबर है, कुरान है, अल्लाह है, जिब्रील है। इस्लामी अकीदे का केंद्र कौन है? तो सब जानते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र कौन है? अल्लाह है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अगर कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका ऑप्शन नहीं होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जाने से पहले कम से जितने सारे वीडियो, जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब लोग आप सही से देख लीजिएगा, ताकि इसी एतबार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद और पिछले सवालों को मद्देनज़र रखते हुए ये सवालात बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए सवाल को गौर से पढ़ेंगे और हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। देखिए, इमाम बिल गैब, ईमान बिल गैब का क्या मतलब है? यानी यहाँ पर इसका अर्थ पूछ रहा है, माना पूछ रहा है क्या है? बिना देखे यकीन करना, खुला यकीन, किताब पर यकीन, जन्नत पर यकीन। तो ईमान बिल गैब का माना होता है बिना देखे यकीन कर लेना कि अल्लाह ताला एक है, नबी और उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, ये आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ईमान बिल गैब का माना क्या होता है? बिना देखा ये यकीन करना कि अल्लाह ताला एक है, उसके पैगंबर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो ये ईमान बिल गैब, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, किस आयत को आयत अक़ीदा कहा जाता है? किस आयत को आयत अक़ीदा कहा जाता है? ये देखिए, ये सवाल पूछ सकते हैं, VVI में लगा लीजिएगा। ठीक है, किस आयत को आयत अक़ीदा कहा जाता है? सूरह नास को, सूरह फातिहा को, आयतुल कुर्सी को, सूरह फलक को? इसका जवाब बताएंगे। सूरह नास को, सूरह फातिहा को, आयतुल कुर्सी को, सूरह फलक को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आयतुल कुर्सी को। ठीक है, आयत अक़ीदा इसे कहा जाता है। चलिए, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को? तो ये सवाल तो आसान है, लेकिन दोस्तों जिसको नहीं मालूम हो उसके लिए भारी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए, अक़ीदे का सही स्रोत कौन सा है? हदीस, कुरान, सहाबा की राय, सब सही है। यानी अक़ीदे तो हदीस से भी आपको मालूम चल जाएगा कि अक़ीदा किसे कहते हैं, कुरान से भी मालूम चलेगा, सहाबा की राय से भी मालूम चल जाएगा। तो जब ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, हदीस हो जाएंगे, कुरान हो जाएंगे, सहाबा की राय हो जाएंगे, तो जब ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, आखिरत पर ईमान का मतलब क्या है? आखिरत पर ईमान का मतलब क्या है? मौत के बाद कुछ नहीं, अल्लाह के सामने हिसाब देना है, नया जन्म, धरती पर स्वर्ग। तो ये तो एकदम आसानी क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा अल्लाह के सामने हिसाब देना है। हर मोमिन ये जानता है कि जो दुनिया में हम कर्म करेंगे, जो अमल करेंगे, उसका हमको हिसाब, जो अच्छा करे तो अच्छा का हिसाब देना होगा, जो बुरा करेंगे तो बुरा का हिसाब देना होगा। तो इसका जो होगा अल्लाह के सामने हिसाब देना है, ये आखिरत पे ईमान का मतलब है। आगे चलिए, अक़ीदे में तकदीर का क्या मतलब है? अक़ीदे में तकदीर का क्या मतलब है? सोच, मेहनत, अल्लाह की तयशुदा योजना, मेहनत का फल। अक़ीदे में तकदीर का क्या मतलब है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अल्लाह की तयशुदा योजना। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ये कादिर मुतलक है, जब चाहे ज़मीन को आसमां कर दे, तो ये कादिर मुतलक है। ठीक है, किसको मानना किसको, ये सब उसके हाथ में है।
देखिए 19 में देखिए इस्लामी अकीदे के अनुसार इंसानों को क्यों पैदा किया गया है। देखिए दोस्त, मैं पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि टाइम आपको पास बहुत कम है और आपको सिर्फ सवाल चाहिए कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है, तो उसी एतबार से ये मैं क्वेश्चन करा के आगे चल रहा हूँ, ठीक है। वो देखिए, अब आगे देखिए, इस्लामी अकीदे के अनुसार इंसानों को क्यों पैदा किया गया। दुनिया से बसाने के लिए, व्यापार करने के लिए, इबादत करने के लिए, तजुर्बा लेने के लिए। तो दुनिया बसाने के लिए तो नहीं, हर एक इंसान जानता है कि दुनिया से जाना ही है। व्यापार करने के लिए, तजारत करने के लिए नहीं, इबादत के लिए। इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है वो इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है। आगे चलें, मलाइका किसे कहते हैं, यानी बोले कि मलाइका का क्या अर्थ है। नबी, मलाइका नबी को कहते हैं, फरिश्ते को कहते हैं, शहीद को कहते हैं, सोभी को कहते हैं। तो मलाइका जो कहते हैं वो कहते हैं फरिश्ते को। तो इस एतबार से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे देखें, ईमान लाने वाले को क्या कहा जाता है। ईमान लाने वाले को क्या कहा जाता है। मुसलमान, मुनाफिक, मोमिन, आलिम। ईमान लाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या मुसलमान कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है, मोमिन कहा जाता है, आलिम कहा जाता है। तो मुसलमान उसी वक्त इंसान होगा जब वो ईमान लाए, ठीक है। तो ईमान जो लाता है तो उसको मोमिन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चले, अकीदे के अनुसार अल्लाह कहाँ है। यानी एक इंसान के जहन है कि अल्लाह कहाँ पर है, तो हर जगह है, मखलूक में है, अपने अर्श पर है, सिंहासन पर है, जन्नत में है। तो इसका जो जवाब होगा कि अल्लाह ताला हर जगह है और इस एतबार से अपने अर्श पर भी है। तो अकीदे के एतबार से अपने अर्श पर है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, अगर ए वाला ऑप्शन आएगा तो एक बार मारेगा, अगर दोनों तो दे नहीं सकता है, अगर दोनों देगा तो अपने अर्श में मारेगा। अकीदे में अल्लाह की सबसे पहली सिफत कौन सी मानी जाती है। अकीदे में अल्लाह की सबसे पहली सिफत कौन सी मानी जाती है। रहमत, इल्म, ज्ञान, इल्म का माना ज्ञान, हयात, ज़िंदा होना, कुदरत। यानी अकीदे में अल्लाह की सबसे पहली सिफत कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब तो इसका है हयात, ज़िंदा होना, ठीक है। हयात, ज़िंदा होना इसका आंसर है। अकीदे के अनुसार अल्लाह की कौन सी सिफत नहीं है। सोना, सुनना, देखना, जानना। तो वो हर एक बात सुनता है, हर एक चीज़ को देखता है, हर एक बात जानता है। तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हमको यहाँ पर सवाल पूछा है सिफत नहीं है। क्या पूछा है, सिफत नहीं है। तो नहीं, ये सिर्फ सोना उनकी सिफत नहीं है, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन के एतबार से। आगे चले, अकीदे में क़यामत का मतलब क्या है। अकीदे में क़यामत का मतलब क्या है। मक्का, हिजरत, जन्नत का दिन, दुनिया का अंत और हिसाब देना, और रमज़ान की रात। तो अकीदे में क़यामत का मतलब क्या है, तो इसका जो जवाब होगा दुनिया का अंत, यानी दुनिया का खात्मा, और आखिरत में हिसाब देना, हिसाब का दिन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे, अकीदे में किस पर यकीन करना फ़र्ज़ है। खुदा पर, नबी पर, किताब पर, सब पर। तो अकीदे में किस पर यकीन करना फ़र्ज़ है, तो खुदा पर भी यकीन करना फ़र्ज़ है, नबी पर भी यकीन करना फ़र्ज़ है, और यहाँ जो किताब है ना, ये कुरान पर, ठीक है। यानी जो सारे के जो चारों किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये तीनों पर, यानी आसमानी किताबों पर भी, तो ये जब ये तीनों सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अकीदे के अनुसार इंसान को कौन मौत देता है। फरिश्ते, इज़राइल, डॉक्टर, खुद इंसान। यानी अकीदे के अनुसार, अकीदे के मुताबिक इंसान को कौन मौत देता है, तो इस फरिश्ते देते हैं, इज़राइल देते हैं, डॉक्टर देता है, खुद इंसान। तो जो अकीदे के अनुसार इंसान को मौत देता है वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, अकीदे में बास अब्दुल मौत का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। बादल मौत का क्या अर्थ है। दूसरी ज़िंदगी, स्वर्ग, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना, अल्लाह का इनकार। तो बादल मौत का मतलब है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना। तो 28 का क्या हो जाएगा,
मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बास बादल मौत का माना। चलिए आगे, किसे रहमतुल आलमीन कहा गया है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन। अक़ीदे के अनुसार जन्नत और जहन्नम क्या है? यानी बोले कि हाँ क्या है? अक़ीदे के अनुसार जन्नत और जहन्नम डॉट डॉट अभी नहीं बने हैं, कल्पना है, बन चुके हैं और हमेशा रहेंगे, सिर्फ किताबों में है। यानी बोल रहे हैं कि अक़ीदे के अनुसार अगर देखा जाए तो जन्नत और जहन्नम बना या नहीं बना है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बन चुके हैं और हमेशा रहेंगे। ये अक़ीदे के तौर से सही है। ठीक है, आगे चलिए। क़ल्ब से यकीन और ज़बान से इजहार किसका हिस्सा है? अमल का, अक़ीदे का, रोज़े का, इल्म का। क़ल्ब का माना होता है, क़ल्ब का माना होता है दिल। क़ल्ब का माना दिल, जिसको अगर उर्दू में लिखें तो ऐसे लिखाएगा दिल। तो क़ल्ब से यकीन करना और ज़ुबान से इजहार करना किसका हिस्सा है? तो ये अक़ीदे का हिस्सा है कि वो दिल से ये मानने कि अल्लाह ताला एक है और ज़ुबान से इकरार करे कि अल्लाह ताला एक है। ठीक है, तो ये अक़ीदे का ही हिस्सा है। आगे देखें, किस चीज़ पर ईमान लाना ईमान बिल किताब कहलाता है? ईमान बिल किताब कहलाता है। किताबों की दुकानों पर, सभी आसमानी किताबों पर, कुरान पर ही, हदीस पर ही। तो 32 का बताएंगे। तो इसमें सिंपली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ईमान बिल किताब के बारे में पूछा गया है। क्या तो सभी आसमानों किताबों पर ईमान लाना यह क्या कहलाता है? ईमान बिल किताब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। 33 देखिए, फरिश्ते गुनाह करते हैं या नहीं? यानी सवाल ये पूछ रहा है कि फरिश्ते गुनाह करते या नहीं? करते हैं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं करते हैं। हज़रत जिब्रील करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है नहीं करते हैं, इसलिए कि फरिश्ते मासूम होते हैं, वो उनसे गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अक़ीदे के अनुसार इंसानों की पहली जिम्मेदारी क्या है? यानी बोला कि अक़ीदा के अनुसार देखा जाए तो इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? कमाना, नमाज़ पढ़ना, ईमान लाना, हज करना। अक़ीदे के अनुसार तो सबसे पहला जो होता है कि अक़ीदे को सबसे पहले ईमान लाएगा, उसके बाद नमाज़ पढ़ेगा, तब मुसलमान होगा, तब नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद हज वगैरह के ये मामला उसके साथ आएगा। तो सबसे पहला जो आएगा वो ईमान लाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 35, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। 35 देखिए, किस अक़ीदे से इंसान को सच्चा मोमिन कहा जाता है? किस अक़ीदे से इंसान को सच्चा मोमिन कहा जाता है? दुनियादारी से, तौहीद से, शादी से, हज से। तो अक़ीदे से इंसान को जो सच्चा मोमिन कहा जाता है वो तौहीद से कहा जाता है। क्या? तौहीद से कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार कह दूं कि हसन मिसबाही यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि उर्दू के जितने भी सवालात आपको पूछे जाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम के लिए उर्दू में, उसमें आपको पहले देखने को मिलेगा और सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। इसलिए आप अगर अभी तक हसन मिसबाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों एक बात और कि आप ये कर लीजिएगा, जो सिलेबस वाला है उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो एक वीडियो ये हो गया और दूसरा वीडियो जो क्लास 1 करके है, वो क्लास 1 करके, यानी ये क्वेश्चन के MCQ के एतबार से, किसके एतबार से? MCQ के एतबार से। तो ये क्लास 1 है और आज जो हुआ है क्लास वो 2 है MCQ के एतबार से। तो अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा और अगले बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने टॉपिक बचे एक ही बार में करा दिया जाए, ताकि टाइम भी नहीं बचा है। और 7 तारीख को आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएँ ताकि आपको बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।